Hi everyone, welcome to S4 Sharnya Science classes. Today we are going to discuss about class 10 periodic table chapter topic Mendeleev's periodic table. In the previous session we have discussed about Doberenes triad and Newland's law of octave. Today we are going to discuss about Mendeleev's periodic table. Right, who was Mendeleev? Why we considering Mendeleev as a father of periodic table? That we have to understand clearly from this session. We have learned that Doberenes triad, Newland's law of octave. In between also there were so many scientists who actually tried to classify the elements in an orderly arrangement to study out about their properties, right? But फिर भी उसके बाद जो Mendeleev आया है, इनका attempt, right, सबसे best मानती है और because of that we considering him as the father of periodic table. Later some more modification हुआ है, फिर भी Mendeleev's की periodic table actually somewhat accurate था, right? So why it is actually accurate? What are the postulates given by Mendeleev? What is the merit of that periodic table? What was the demerit of that periodic table? That we are going to learn about in this session, right? So let's start. First we have to understand who was Dmitry Ivanovich Mendeleev, right? Dmitry Ivanovich Mendeleev was a Russian chemist, right? He formulated the periodic law and even he created a far-sighted version. Why we are telling far-sighted version? That you will understand now, right? Of periodic table, and he used it to correct the properties of some already discovered element which was stated before, and also he even predicted the properties of future to be the elements to be discovered in the future, right? So what are the early tries? That also we will have a understanding, right? So here you can see that this is actually the Mendeleev's periodic table which he formulated, right? We will discuss that detail. उसके पहले हमको अर्ली ट्राइज क्या क्या था वो एक बार डिस्कस करना है, राइट? सो द अर्ली ट्राइज यू कैन सी दैट इन 1863 देयर वाज अबाउट 56 एलिमेंट्स वर नॉन, राइट? एंड एवरी ईयर दैट ना व्हाट से इफ यू आर अप्रॉक्सीमेटली बता रही है तो एवरी ईयर एक एक नया एलिमेंट ऐड करती रहती थी, राइट? सो एन न्यू एलिमेंट वर डिस्कवर्ड पर ईयर दैट टाइम, राइट? So you can see that the other scientists already identify किया है there was a periodicity of elements, right? That means उनका property में बीच में एक repetition हो रही है. Periodicity means it's actually the repetition of their property after a regular interval. Recurrence हम बता सकते हैं, right? तो regular interval में एक periodicity we can see that was actually identified the scientist, right? Mendeleev ने क्या किया है? Mendeleev attempted to clarify or classify these elements according to their chemical properties. तो थोड़ा बहुत आइडिया उनको मिल गया था. उसके बाद Mendeleev ने ये सारे एलिमेंट्स जितना एलिमेंट्स वर नॉन दैट टाइम एट दैट टाइम व्हेन Mendeleev classified about 63 एलिमेंट्स वर नॉन, राइट? तो ये 63 एलिमेंट्स ने इन्होंने क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट? And when he arranged them in according to their chemical properties and also according to the increasing order of their atomic mass, इन्होंने notify किया है, he noticed a pattern, right? एक pattern उन्होंने देख लिया है and that's why which lead to that postulates of that periodic table, right? And even he formulated a periodic law also which is known as Mendeleev periodic law. एक्चुअली Mendeleev ने ऐसे भी बता दिया था, इन्होंने ड्रीम में देखा है पूरा पीरियोडिक टेबल. एक्चुअली ही स्टेटेड आई सॉ इन अ ड्रीम a table where all elements fell into place as required. Awakening, I immediately wrote it down on a paper. There was very few correction, बाकी सब कुछ everything was accurate. That was the quotation of Mendeleev, right? तो देख लो हम सभी ऐसे ड्रीम करते हैं क्या? ऐसे भी पागल लोग होती हैं जो उनका ड्रीम में पीरियोडिक टेबल ड्रीम करती है, राइट? तो इन्होंने बता दिया था आई सॉ इन अ ड्रीम द एंटायर पीरियोडिक टेबल. एंड जब भी उन्होंने वेकअप किया था उसी पीरियोडिक टेबल में उन्होंने नोट डाउन किया है एक पेपर में. दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ Mendeleev, राइट? सो यू कैन सी दैट द पैशन ऑफ हिज स्टडीज, राइट? सो अभी स्टोरीज तो बहुत कुछ हो गया, हमको थियरी में दैट व्हाट वी हैव टू लर्न, राइट? सो दैट सिलेबस में वापस आओ, हमारी थियरी पढ़ना है, राइट? सो कम बैक टू आवर टॉपिक, राइट? सो हियर फ्रॉम यू कैन सी दैट व्हाट इज एक्चुअली द Mendeleev periodic table, राइट? Mendeleev की periodic table actually based on two major facts था. One was that atomic mass and another one was the similarity of chemical properties, right?
सो पीरियोडिक मीन्स हमने बोला पीरियोडिक टेबल. वाई इट इज कॉलिंग अस पीरियोडिक टेबल? बिकॉज इट्स हैपनिंग एट a regular interval. What are that similarities of property, whatever it is, at a regular interval में recurrent हो रही है, repeat हो रही है. So that's why it is known as periodic. राइट हमने ऑलरेडी बता दिया था मेंडलीव ने एक पैटर्न फाइंड आउट किया है. राइट सो द सेम वो पीरियोडिसिटी के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे साइंटिस्ट ने पहले भी रिपीट किया था, जैसे कि न्यूलैंड ने बता दिया था. राइट 8 दटना एलिमेंट्स के बाद पीरियोडिसिटी हो रही है. द सेम वे पीरियोडिसिटी तो पहले बता दिया था, बट कैसे उसको अरेंज करना है दैट वाज दैट मेजर कंसेप्ट. राइट तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में मेजरली 2 मेन फैक्ट्स को इन्होंने कंसिडर किया था. राइट सो ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग order of their atomic masses and also similarities in their properties. ये दो चीज इन्होंने कंसिडर किया है. राइट एंड ऑल्सो ही इवन कंसिडर्ड द फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स. कैसे वो एलिमेंट्स ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बना देती है, उसका क्या क्या सिमिलैरिटी है, वो भी इन्होंने कंसिडर किया है. राइट नाउ what is actually the Mendeleev periodic table, उसका व्यू एक बार देख लो and we will explain that. So here you can see that this is actually the Mendeleev periodic table. Right ये जो देख रही है this is actually हमारा Mendeleev periodic table. Right so you can see here Mendeleev periodic table. इसमें you can see that there were 6 periods. Right so 6 later it was actually one more period they added 7 you can say that, but when Mendeleev ने discover किया था that time it was 6 period and 8 groups were there. Right so 8 groups में you can see that 1 2 3 4 5 6 7 and 8th group. Right इसमें से 1 to 7 groups had 2 subgroups. You can see that A and B. Right 2 subgroup था और 8th period को actually इन्होंने 3 rows में classify किया है. तो first row, second row and third row. Right A से इन्होंने arrange किया है. Right here he even classified, he actually taken how these formulas that ना oxides of hydrides कैसे बनती है that also he considered. Like that you can see that हम इधर बताती है RH4 hydrate. Right so that's actually CH4. राइट RO2 CO2. तो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स कैसे बनती है, दिस वाज ऑल्सो टेकन एज ए बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन. राइट एंड हमने ऑलरेडी बता दिया था अभी इनका दैट ना एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज उसको सेम ग्रुप में अरेंज किया है. सो ग्रुप्स आर एक्चुअली यू कैन सी हियर हमने लिख लिया है दो वर्टिकल दैट ना हमारी कॉलम्स को. राइट तो वर्टिकल कॉलम्स ऐसे. राइट वर्टिकल कॉलम्स को हम बताती है द ग्रुप्स. राइट एंड हॉरिजॉन्टल रो दैट मीन्स ऐसे. राइट इसको बताती है पीरियड्स. तो दिस वाज द दैट ना फर्स्ट कंसिडर किया है मेंडलीव ने. मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स उसी टाइम अवेलेबल थी दैट्स एक्चुअली 63 एलिमेंट्स को उन्होंने एक्चुअली एक स्पेशल क्लासिफिकेशन टेबल में अरेंज किया है जिसमें वर्टिकल दैट ना कॉलम्स को हमने ग्रुप बुला दिया है और हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड बुला दिया है. राइट सो व्हेन वी अरेंज यू कैन सी दैट देयर वर 8 ग्रुप्स वर अवेलेबल. राइट उसमें से 1 to 7 को A B क्लासीफाई तो सब डिविजन किया है और 8th ग्रुप को 3 रोज में ही क्लासीफाई किया है. राइट एलिमेंट्स एक्चुअली सिमिलर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी उसी सभी को सेम ग्रुप में अरेंज किया है. सो यू कैन सी दैट इफ दिस वी आर कंसिडरिंग द फर्स्ट ग्रुप जिसमें जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर है उसको सेम ग्रुप में अरेंज किया है. वेदर इट इज करेक्ट और नॉट दैट वी विल चेक लेटर. राइट और यू कैन सी दैट उन्होंने कुछ स्पेसेस यू कैन सी दैट देयर आर सम वैकेंट स्पेसेस इधर मैंने फिल किया है बट ऐसे वैकेंट स्पेसेस भी इन्होंने छोड़ कर रखा है. व्हाई इट इज एक्चुअली हैपन दैट टाइम इट वाज नॉट एट ऑल देयर वाज सम कंफ्यूजन बट इन्होंने बता दिया था ये लेफ्ट स्पेस इट्स एक्चुअली लेफ्ट दैट ना केप्ट इट एज लेफ्ट बिकॉज टू अकोमोडेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर. जो उनको पता था देख लो मेंडलीव की स्पेशलिटी क्या था जितना पहले वाले साइंटिस्ट को क्या था कितना एलिमेंट्स है. You can see that ना every element was not able to arranged by Newland or Dauberinier. Right तो उसी टाइम कितना अवेलेबल एलिमेंट्स था नॉन एलिमेंट्स था उसको सभी को अरेंज करना मुश्किल था उनके लिए. राइट बट मेंडलीव ने क्या कर दिया था जो एलिमेंट अवेलेबल था उसके अलावा फ्यूचर में जो आने वाली एलिमेंट्स को भी जगह दे दिया है. तो he was that much far sighted. That's why we told already in the first slides में
ही वॉज फार साइटेड, ही फॉर्मुलेटेड ए पीरियोडिक टेबल विच वॉज एक्चुअली फार साइटेड. इन्होंने जो फ्यूचर में इसी जगह में इसकी, दैट मीन्स इन्होंने इवन इसका प्रॉपर्टी भी बता दिया था. दैट मीन्स आप देख लो, ये दटना ग्रुप की प्रॉपर्टी बता दिया था. इसकी सभी की ग्रुप तो ऐसे बता दिया था, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी. तो इसी जगह में जो आने वाली एलिमेंट मान लो x है, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इसके बराबर होगा. तो इट वॉज एक्चुअली वेरी ईजी फॉर दैट साइंटिस्ट. फ्यूचर में वो एलिमेंट्स को डिस्कवर करना बहुत ईजी था, बिकॉज दे हैव टू सिंपली सर्च इसी ग्रुप की ये प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है क्या, तो उसको इधर अरेंज करना है. सो उसके लिए भी इन्होंने जगह छोड़ कर रखा है, राइट. सो द स्पेस लेफ्ट दैट ना फॉर द इन द पीरियोडिक टेबल टू accommodate elements to be discovered in the future. And he even formulated a periodic law which was known as Mendeleev's periodic law. इन्होंने क्या बता दिया था, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम लर्न करेगी, दैट टाइम वी विल ओनली चेंज दिस लाइन, राइट, दिस वर्ड ओनली, बाकी सब कुछ सेम आएगा, राइट. सो इन्होंने क्या बता दिया था, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम बता रही है, पीरियोडिक फंक्शन, दैट मीन्स बीच बीच में आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल जो रिपीट कर रही है, दैट वाज एक्चुअली बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, राइट. सो द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. दिस इज नोन एज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, राइट. Now, what was the merit? तो अरेंजमेंट तो हमने देखा है, राइट. इसके बाद हमको समझना है what was the major merits of this periodic table, right. तो first we have to said that it was a better classification, right. It was more accurate, more orderly arrangement, right. तो elements were classified on a more fundamental basis of their atomic masses and properties. तो मेजरली इन्होंने एटॉमिक मास और उसका केमिकल प्रॉपर्टी देखा है, तो इट वाज मोर फंडामेंटल, राइट. सो इट वाज मोर एक्यूरेट, वी कैन से दैट. एंड सेकंड जो हमारा मेरिट बता रही है, स्पेसेस वर लेफ्ट, राइट, वैकेंट टू अकोमोडेट द फ्यूचरली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स. उसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं. इन्होंने एक्चुअली इनको नाम भी दिया था, लाइक इक्का अल्यूमिनियम, राइट, इक्का बोरॉन, right, and Ika silicon. Ika means in Sanskrit में one after, that means preceding one, being one in Sanskrit, right, we can see that. So you can see here, I'm coming back to that same table here. तो देख लो, हमने इक्का अल्यूमिनियम बोला है, right, इक्का अल्यूमिनियम. तो अल्यूमिनियम की बाद जो है उसको छोड़कर नेक्स्ट, so it was actually gallium. It the place were left kept open, vacant later ये समझ में आ गई, it was actually gallium, राइट. उसी जगह में जो इक्का अल्यूमिनियम इन्होंने बोला है, दैट वाज गैलियम, उसका प्रॉपर्टी वाज सिमिलर टू दैट ऑफ गैलियम. ऐसे इन्होंने बोला इक्का बोरॉन आफ्टर वन यू कैन सी दैट इट विल बी कमिंग एज स्कैंटियम, राइट. ऐसे इन्होंने इक्का सिलिकॉन भी बता दिया था, आफ्टर वन यू कैन सी दैट जर्मेनियम, राइट. तो दीज ऑल वर द डिस्कवरीज ऑफ मेंडलीव इटसेल्फ, राइट. तो लेटर ये जर्मेनियम है, ये गैलियम है, स्कैंटियम है, ये सब कुछ डिस्कवर किया था. उसी टाइम इनका नाम इन्होंने इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरॉन, इक्का सिलिकॉन ऐसे दिया है, राइट. नाउ द थर्ड एक्चुअली यू कैन सी दैट मेरिट जो है मेंडलीव की, दैट वाज एक्चुअली द करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, राइट. इन्होंने कुछ एटॉमिक मासेस पहले जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसको करेक्ट किया है. जैसे कि यू कैन सी दैट बेरिलियम के एटॉमिक मास पहले बता दिया था 13.5, उसमें से मेंडलीव ने बताया इट्स नॉट 13.5, इट इज़ एक्चुअली 9, राइट. तो इन्होंने करेक्ट किया है. ऐसे इन्होंने एटॉमिक मास ऑफ इवन इंडियम, प्लैटिनम, राइट, गोल्ड, ये सब कुछ इन्होंने करेक्ट किया है. उसका एटॉमिक मास भी एक्चुअली करेक्टेड. तो करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस आल्सो दैट मेरिट ऑफ मेंडलीव, राइट. Another one was that he could even predict the properties of the elements, right. हमने ऑलरेडी बता दिया, जो वैकेंट स्पेस इन्होंने छोड़ा था उसी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इन्होंने पहले बता दिया था, which actually helped that discovery of the future elements very easily उनको डिस्कवर कर पाती थी. that mean because of that उसकी प्रॉपर्टी पहले से पता है, so they were in search of that, so उनका जगह ऑलरेडी उन्होंने छोड़ कर रखा है, तो जस्ट उसी जगह में जाकर वो एलिमेंट को बिठाना है. that was only the problem, right. now the other one was इसी टाइम में देयर वाज नो नोबल गैसेस डिस्कवर्ड, राइट. लेटर नोबल गैस डिस्कवर किया था. यू नो दैट लेटर नोबल गैस को उधर प्लेस करने में भी बहुत आसान था, बिकॉज इट वाज नॉट एट ऑल डिस्टर्बिंग द टेबल. उसके बाद अलग से एक कॉलम बनाकर उसको भी ऐड किया है. So noble gases which discovered later could be placed easily without disturbing the
periodic table. So these all were the merits of Mendeleev's periodic table, right? Now we are going to discuss about what are the main demerits of Mendeleev periodic table. Demerit in the sense actually defects, और हम बता सकते हैं limitation है, right? So एक limitation what was that, right? So limitation जो बता रही है, especially first one, the position of hydrogen, right? Here also the position of hydrogen was uncertain. Hydrogen की specialty क्या है? Hydrogen you can see that it can actually +1 oxidation state भी है, hydrogen -1 भी दिखाती है. That means it can even जैसे कि first group member, right? Sodium उसके साथ we will learn that what it is first group and all, और इवन हैलोजन के साथ क्लोरीन फ्लोरीन उसके साथ भी इट कैन, बिकॉज वैलेंसी हमारी फर्स्ट ग्रुप सोडियम की +1 होती है, पोटेशियम की +1 है, ऐसे भी बिहेव करती है जैसे कि क्लोरीन -1 फ्लोरीन -1 ऐसे के भी बिहेव करती है. तो इसका पोजीशन इधर है और इधर है, दैट वाज लिटिल कंफ्यूजिंग, राइट? तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज हियर अनसर्टेन, दैट ऑल्सो ए मेजर प्रॉब्लम था, right? And another one is that position of isotopes, that was also not clear. What do you mean by isotopes? क्या है isotopes? I hope you all know because class 9 में maybe you have learned it clearly, right? तो isotopes क्या है? Isotopes are that na elements which is having same atomic number but different atomic mass, right? Mass number different है, atomic number same है. So that means carbon 6, you can see that carbon 612, carbon 613, कार्बन 614, these all are isotopes है कार्बन की. यू कैन सी दैट हमारा एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास नंबर जो है वो डिफरेंस है. दैट मीन्स न्यूट्रॉन की नंबर में डिफरेंस होती है. तो इन्होंने अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. ऐसे है तो ये सारे कार्बन को अलग अलग जगह देना है, बट इन्होंने दे दिया है क्या? नहीं है. तो दैट वाज ए प्रॉब्लम. तो ये सारे आइसोटॉप्स है, तो अब तो एक एक एलिमेंट की कितना आइसोटॉप्स है उसका सभी को प्लेस करना है. सो दैट वाज आल्सो लिटिल डिफिकल्ट, राइट? तो इसलिए पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स वाज आल्सो नॉट एट ऑल क्लियर, राइट? नाउ व्हाट वर द अदर प्रॉब्लम्स दैट यू कैन से दैट हियर यू कैन सी दैट अनोमलस पेयर, कुछ अनोमलस पेयर इन्होंने फाइंड आउट किया है. व्हाट वाज दैट एक्चुअली, राइट? सो इन सर्टेन पेयर यू कैन सी दैट कुछ जगह में सर्टेन पेयर ऑफ एलिमेंट्स में यू कैन सी दैट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नॉट एट ऑल ओबेड, राइट? हमने ऑलरेडी बता दिया था, मेंडलीव ने अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. इन्होंने वो बता दिया ना. सो इट वाज नॉट एट ऑल दैट ना व्हाट विल से arranged, that means obeyed here. So the that na in certain pair of elements that na the increasing order, right? तो इन्होंने बता दिया था the increasing order of their atomic mass was not at all obeyed. हमने फॉर्मुलेट तो बता दिया था अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इन्होंने मेंडलीव ने अरेंज किया है, बट इट वाज नॉट एट ऑल फॉलोड. तो उसके एग्जाम्पल जो हम बता रहे हैं उसमें है आर्गन. आर्गन की एटॉमिक मास एक्चुअली 39.9 था, पोटेशियम की 39.1 था, बट फिर भी आर्गन को पहले प्लेस किया है, उसके बाद पोटेशियम. इफ इट इज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास देन पोटेशियम मस्ट बी प्लेस्ड फर्स्ट एंड देन आफ्टर आर्गन. ये मेंडलीव को पता था इन्होंने ये जो किया है वो गलत है, बट फिर भी उन्होंने चेंज नहीं किया है. बस ही टोल्ड दैट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इन्होंने अरेंज किया है, द पोजीशन वाज एक्चुअली करेक्ट. इसलिए हम बता रहे हैं उनको पता था फिर भी उन्होंने चेंज नहीं किया है. सो दैट्स व्हाई अगेन वी आर टेलिंग ही इज फार साइटेड पर्सन, राइट? Another example, it was actually tellurium. Tellurium atomic mass 127.6 and iodine ki atomic mass 126.9. Then also tellurium was placed before of iodine, right? So this was also another demerit, right? Another demerit जो बता रही है, some similar pair of elements are separated. That means जिसका property similar है, जैसे कि कॉपर, mercury, बेरियम, लेड वगैरह, जिसका properties about similar था, उसको बिल्कुल अलग अलग place में place किया है. एंड ऐसे कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर था, राइट? सॉरी डिसिमिलर था. दैट मीन्स कोई लेना देना नहीं था, उसको एक सेम पीरियड में प्लेस किया है. दैट मीन्स यू कैन सी दैट इन द फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट ग्रुप इफ यू आर चेकिंग, उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है. उसके साथ हमारे लीस्ट रिएक्टिव कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, इसको प्लेस किया है. सो दैट वाज दैट ना अनदर प्रॉब्लम, राइट? सो डिसिमिलर एलिमेंट को सेम ग्रुप में प्लेस किया है, सिमिलर एलिमेंट को अलग अलग किया था. सो दिस वाज ऑल्सो अनदर डिमेरिट, राइट? एंड अनदर वन वाज दैट हमने ये सब कुछ बोला है पीरियोडिसिटी, राइट? प्रॉपर्टी की रिपीटेशन हो रही है,
क्यों हो रही है वो तो पता ही नहीं था किसी को, हो रही है वो तो पता है, क्यों हो रही है मत पूछना, मेरे को पता नहीं है, राइट? सो दैट वाज द concept here. He could not even predict the cause of periodicity among the elements. This was the all the concept that not demerits or defects, we can even say that limitation of Mendeleev's periodic table. I hope you understand the Mendeleev's periodic table very clearly. It's a very important topic and it's very easy also. If you understand that what is the arrangement, कैसे arrange किया है, what is the merits, what is the demerits, it's simply right. So it's really simple. I hope you enjoyed the video. Thanks for supporting. Thanks for watching. Bye bye.